Hi guys, welcome back to class of planning. Yeah, with Rahul Sharma, your friend and kind of this class all about सर कल पेपर है तो आज कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या बेसिक्स होंगे जिनको फॉलो करने के बाद विल गोइंग टू क्रैक दिस पेपर इजीली. Yes, we don't have much time, just 5 to 6 hours. Now अभी 5 से 6 घंटे how we going to use and what be the perfect way to get maximum marks in this short span of time. So guys, here you guys need to look this video from the beginning till the last and follow what I'm saying. The first thing we guys need to know is about MBG6 American literature. And the American literature do have 5 questions to do in a paper. So आपने सिर्फ उसे 5 क्वेश्चन करने as we are having any 5. The first be compulsory. तो choice मिलेगी. Yes, you have the choice around 10 to 11 क्वेश्चन are in the paper. अब आपको कौन सा चूज करना कौन सा छोड़ देना है, this is you. The first thing जो on पे पहुंची, that is the very first topic. So it's all about the fictions. Not the fictions, it's all about the context of American literature. So what is the context of American literature? How I'm going to deal with this context of American literature? What is here? So इसमें सब Puritanism. What is Puritanism? Evaluation of English literature or American literature in the 17th century or the 19th century. अब ये Puritanism क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों के लिए करना है. सही इतना टाइम नहीं है that we can go to the detail of this topic. तो ऐसा करते हैं 4 क्वेश्चन, जस्ट 4 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप इनको फॉलो कर लेंगे एंड देन देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स. तो यहाँ पर आते हैं 4 क्वेश्चंस, सब कुछ रेडी है यहाँ पे तुम्हारी तैयार की है. तो आपने कहा द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, गाइस आर यू राइटिंग, प्लीज राइट डाउन नाउ बिकॉज़ आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑन दिस ऑन द बोर्ड. तो आप प्लीज लिखेंगे. द फर्स्ट इज हाउ डिड एमर्जेंस ऑफ ट्रेडिंग, आई रिपीट, हाउ डिड द एमर्जेंस ऑफ ट्रेडिंग intersects. I repeat, how did the emergence of trading interests undermine the unity within the pagan settlements? I repeat, how did the emergence of trading interests undermine the unity within the Puritan settlements? Within the Puritan settlements. ये क्वेश्चन easiest है. In a first reading आपको क्लियर हो जाएगा. And those who have the notes उनके पास आंसर है, वो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से. Come to the second question. Write a critical note on the Puritanism. I repeat, write a critical note on the Puritanism as reflected in American literature. As reflected in American literature. Tomorrow you are going to have paper और मैं definitely आपसे पूछूंगा कि यार कैसा हो पेपर. आप सारे के साथ ध्यान रखना, मैं कल वीडियो भी डालूंगा कि आंसर क्या थे. Now come to the third question. Discuss the major tenets. Discuss the major tenets of American Enlightenment. Discuss the major tenets of American Enlightenment. What were its effect on life and literature? I'm repeating the question, guys. Listen carefully. Discuss the major tenets of American Enlightenment. What were its effects on life and literature? ये पहले लिखना है. These questions जो मैं बोल रहा हूँ 3, 4 और 5, मैक्सिमम 4 और 5, ये 100% फर्स्ट क्वेश्चन होंगे कंपल्सरी है. जो दैट वे कंपल्सरी क्वेश्चन दैट यू गाइस नीड टू प्रिपेयर दिस. अगर ये 5 से क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्रैक होता है दैट वे कंपल्सरी क्वेश्चन, तो आई डोंट थिंक कि इज सब बिग डील, यू कैन डू इट इजीली. I'm repeating the last question. Discuss the major tenets of American Enlightenment. What were its effect on the life and literature? Now I'll come to the next question, and this is the aspect that I'm been thinking. यार ये इस पर आना चाहिए. Critically discuss the Indian context. Critically discuss the Indian context of American literature. Indian context of American literature in the 19th century. Look at this question again and write down clearly. Critically discuss the Indian context of American literature in the 19th century. अब इसी को दूसरे फेज में देखो तो मैं here the critically comment on the Puritanism with the reference of American writing in 19th century. Repeating the last time. Critically comment on the Puritanism with the reference to American writing in the 19th century. तो यार ये तो हमारे लिए क्लियर था, हमने का कॉन्सेप्ट समझ गए. How we going to deal with इसके क्लियर कर लेते हैं. And those who want the notes, sir पीछे नंबर है, लेकिन those who want the questions, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, तो प्लीज वॉच माय लास्ट वीडियो. आई ट्राई टू ऐड द लिंक इन बिटवीन, नहीं तो आप प्लीज देखें लास्ट अपडेट MG6 की जो है, आप वो क्वेश्चन फॉलो करेंगे. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब चॉइस हो गई, यार ये तो आने आना था.
फिक्शन, यस वी आर इन फिक्शन सर, 2 फिक्शन है, लेकिन पहले क्लियर कर लेते हैं। मैं ऐसे क्यों डिटेल में आपको सबको देता हूँ, व्हाई शुड आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, ये तो कोर्स कंटेंट आपको पता है। बट गाइस आपको जो 4 क्वेश्चन करने, पहले तो कंपल्सरी था इसलिए मैंने 5 क्वेश्चन दिए, उनमें से एक कंफर्म आएगा, मोड होके 100% एक क्वेश्चन होगा, चेक कर लेना आप, 100% क्वेश्चन होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द ब्लूएस्ट आई नंबर 2। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया नंबर 2 द ब्लूएस्ट आई का क्वेश्चन आना ही आना है। It is 100% sure that you are going to have one question from the bluest eye. Sir, यहाँ पे मैं नरेटिव टेक्निक को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इबोला के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियर कर सकता हूँ, ब्लू आई के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता हूँ, या नरेटिव टेक्निक को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इनके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं आता, जिसको हम बोलते हैं ना द एप्रोप्रिएशन ऑफ टाइटल, दैट कैन कम। ये है मैक्सिमम फेज जो हमें ऑन टिप होना चाहिए, एंड आई रियली नो दैट यू गाइस आर गोइंग टू डील विद इन ईज। तो आई होप ये बहुत आराम से हो रहा है, मतलब हम कर क्या रहे हैं, हाउ यू गाइस आर गोइंग टू डू, क्या कॉन्सेप्ट होंगे, कैसे फॉलो करना है, एक एक चीज को ऑन टिप करेंगे। तो यहां से शुरू हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर से आएगा, पैगडानिज्म का कॉन्सेप्ट था, पूरा क्लियर था हमारे पास, द ब्लूएस्ट आई नंबर 2। थर्ड वन, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरी चॉइस रहेगी दिस, दैट इज ड्रामा, द हेरी एप, डेथ ऑफ सेल्समैन। 2 स्टोरी सब, दोनों की वीडियो में डाली, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टोरीज, नरेटिव टेक्निक, कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट, 3 टॉपिक्स कंफर्म क्वेश्चन पेपर में। That means I am going to deal with the first question, the context, the second one, the bluest eye, and the third I am going to attempt from these 2, Hairy Ape or the Death of Salesman. And you guys can watch the video that is already uploaded in channel. If you have subscribed the channel already, तो आप देख सकते हैं, नहीं किया तो I don't have any problem guys, it's your choice. But आप देख पाओगे easily when you subscribe the channel, तो आप easily crack कर पाओगे। तो here are the certain things, Hairy Ape and the Death of Salesman. And when you think that it works for you, the video works for you, you guys can like and share the video with other people so they too get with the benefit. Come to the question number 4. So 3 हो गया हमारे पास, ये will complete the 3. Then why I have written all this? किसको प्रॉब्लम है कि सर ये बताया नहीं आपने। Now I'll come to the question number 4. That is the prose writing. It is help very thin. So देखो themes, characterization and narrative. Nothing more than that is required to crack this question. तो क्वेश्चन नंबर 4, yes I am talking about question number 4. आपने कहा हम लोग हैकल थीम्स, कैरेक्टराइजेशन एंड नैरेटिव टेक्निक, इनको करना है, करने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स को फॉलो करना है, एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट। दिस इज रियली वेरी इजी एंड आई रियली वांट यू गाइस टू बी वेरी एक्यूरेट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे तैयार करना है, करने का तरीका क्या होगा, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, अगर मेरी फ्रेम की वीडियो को देखो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो एंड देन गो फॉर द आंसर्स। ये है वो बेसिक्स जो आपको फॉलो करना है। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सर पहले 5 क्वेश्चन करने, तो हमने 5 की बात की, पहला कंपल्सरी था, बाकी में चॉइस 4 की, तो 3 तो मैंने क्लियर कर दी कि यही होंगे आपके, द ब्लूएस्ट आई, ड्रामा, द हेरी एप, दैट तो द हैकल एलिफेंट। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सर इट्स नॉट द पोएट्री, it's all about the short stories. So number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5. Short stories. The beer, a clean, well lighted place. The beer and a clean, well lighted place. A clean, well lighted place. Easiest story. The story that we love to read. The beer. मैंने कहा बीए को पढ़ा था, क्लीन लाइट, वेल लाइटेड प्लेस, दोनों ही दोनों बहुत आराम से क्लियर होने वाली पोएट्रीज थी, शॉर्ट स्टोरीज। इन दोनों शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ते हुए मैं कैरेक्टर्स पे ध्यान देता हूँ, मैं बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ, नरेटिव टेक्निक पे ध्यान देता हूँ, तो क्वेश्चन यही आने वाले सर। तो ये तो गए 5 क्वेश्चंस। अब सर जिनको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है, यार टाइम नहीं है आपके पास, 5 या 6 घंटे, बट जिन्होंने पहले तैयारी की हुई है, तो मैं आपको बताया था करना है। पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ब्रिटिश सिविल वॉर, लिख लो, कल ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। एक क्वेश्चन सिविल वॉर से रिलेटेड आएगा, लास्ट वीडियो चेक करना, उसको मैच करना, कल पेपर आएगा जो आज वीडियो बता रहा हूँ, इसको कल के पेपर से मैच कर लेना, फिर मुझे बोलना कि सर आपने जो बताया था वो क्लियर नहीं हुआ। नोट्स में सारे क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले 100%।
तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर। फिक्शन दो है हमारे पास, इसमें हमारे पास अमेरिकन लिटरेचर है, नरेटिव टेक्निक है, कैरेक्टराइजेशन को हाईलाइट किया। अब पोएट्री में किसको पढ़ूं किसको छोड़ दें, दिमाग में कई सारी चीजें। सर एमिली डिक्सन, वॉल्ट व्हिटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एड्रॉन रिच, ये चार, इनके अलावा तीन और हैं। वॉल स्टीवंस में लिखा है, अगर मन करे तो उसको पढ़ना। इन चार को पढ़ लेना है आपका छठा ऑप्शन और छठा और लास्ट ऑप्शन। इनके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। फिक्शन में सर दर्द मत करना, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप वहां भी टाइम दो, तो ऑलमोस्ट लास्ट आ रहे हैं, ऐसा लास्ट ऑफ प्रिपरेशन। अब लास्ट ऑफ प्रिपरेशन में हम कैसे करने वाले हैं, करने का तरीका क्या होगा, कैसे मैं पेपर को क्रैक करूंगा इन दिस शॉर्ट स्पैन टाइम। तो आई होप यू आर गोइंग टू फॉलो the suggestion that I just gave you in this particular video. For more, you guys need to, you know what to do. Till then, guys, prepare all the best for your exam.